Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gargi Vaishne and currently I'm a final year MBBS student at KGMC Lucknow, and in this video we'll be talking about how to make smart short notes. Now the importance of short notes I already explained to you in my previous video. You can go and check it out over there. So let me just give you a gist of whatever I told in that video. So first of all, you are preparing to be able to revise everything in the last 1 week, and your preparation is literally a waste of time, money and effort, everything, if you are not able to revise everything in the last 1 week or even in the last 1 month. And it becomes very difficult to revise everything if you have all of your information scattered in various books and various notes. So it is very important to make short notes, smart short notes I must say, so that you are able to revise everything in a very less time, and you increase the frequency of your revision also. So let me tell you something that बहुत बार हमने देखा होगा कि यार टॉपर्स को सारी चीजें बहुत फ्रेशली याद रहती है. तो इसका रीजन सिंपल सा होता है क्योंकि यार वो इतनी बार रिविजन कर लेते हैं हर चीज को, मतलब दे जस्ट फाइंड वेरी क्रिएटिव वेज to just revise everything every day. And I've literally seen toppers जो कि literal 5 to 6 times last week में revision करके चले जाते हैं, पूरा syllabus का revision करके जाते हैं. तो if you're able to revise everything in the last 1 week, that I can tell you that then you will definitely get a very good score, because if you're able to revise everything in the last 1 week, your speed will increase, क्योंकि तुम्हें recall करने का जो time है तुम्हारे exam में वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी speed बढ़ जाएगी and your silly mistakes will reduce, क्योंकि तुमने सब कुछ fresh पढ़ा होगा. Your accuracy will increase in your main day examination. So making short notes is the smartest move that you can actually do. So now coming to the main video, how to actually make smart short notes. So whatever I'm telling in this video, I had already done it myself during my NEET preparation time. When I am a MBBS student, I even do it for very vast topics जिसका मुझे पता है कि यार ये ही पढ़ के जाना है main day exam में, तो why read so many books, so many standard books. So in this way I had made my short notes also. So this method is very tried and tested, and this method is not only tried by me, this method is tried by many of my mentees, many of my juniors and many people who are there in my batch also. So what you all have to do is you have to take an A4 size sheet, और उस A4 size sheet पे तुम्हें उसे divide कर देना है 2 parts में, ठीक है. If you want you can divide it into 3 parts also. I usually do it in 2 parts. अगर तुम्हें बहुत बड़ा चैप्टर को कंसाइज करना है तो तुम 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लो, ठीक है. उसको डिवाइड करने के बाद तुम्हें बहुत एकदम फाइन टिप पेन से क्या करना है, फाइन टिप पेन से हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की वो सारी चीजें उसमें लिखनी है जहां से क्वेश्चन आता है. एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल डूइंग दिस, क्योंकि तुम्हें इसमें कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो डालनी नहीं है जहां से क्वेश्चन आ नहीं सकता. सेकेंड ऑफ ऑल, तुम्हें यहाँ पे वो सारी चीजें डालनी है जहां से क्वेश्चन आ सकता है. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होता है. अब योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज F इक्वल्स टू ma, तुम्हें ये भी लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं. इनफैक्ट आई वाज द वन हु यूज्ड टू डू दिस मिस्टेक माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन माई 12th स्टैंडर्ड इवन इन माई फर्स्ट ड्रॉप ईयर. मैं जब भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी ना, मैं हमेशा ना उसमें वो सारी चीजें लिखती थी जो मुझे याद नहीं है, ठीक है. अब यार मैंने सपोज वो शॉर्ट नोट्स बनाए 2 महीने पहले एग्जाम के, पर यार मैं अगर बार बार सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करूंगी तो इससे क्या होता था कि जो मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ना, जो कि मुझे याद थी, ठीक है, वो भी मैं भूलती चली जा रही थी टाइम के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रही थी जो मुझे याद नहीं है, ठीक है. अब इफ यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, जैसे कि बहुत जब तुम्हारे एग्जाम बिल्कुल पास में आने ही वाला है, तो तब यू कैन ट्राई दिस आउट कि तुम बस वो सारी चीजें लिखो उस पर जो कि तुम्हें याद नहीं है. बट यार अभी से अगर तुम बना रहे हो, ठीक है, एंड इट विल बी रियली वेरी एडवाइजेबल कि तुम अभी से बनाओ, ठीक है. तुम अगर सारी चीजों को एक जगह पर कंपाइल करके रख दोगे तो उसका ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन विल इंक्रीज, एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रिविजन विल इंक्रीज देन ऑटोमेटिकली यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स. तो इसमें तुम्हें वो सारी चीजें लिखनी है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. बहुत ही कंसाइज करके लिखना है, जैसे कि F इक्वल्स टू ma, ठीक है. तुमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा, सेकंड लाइन तुम बहुत छोटा एकदम छोटा लिखना है, बट सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें लिखनी है. इट शुड ऑल्सो इंक्लूड कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारे थ्योरेटिकल, जितना तुमने थ्योरी वाला पार्ट लिखा उसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि तुम बार गलत करते हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें उन शॉर्ट नोट्स में वो भी इंक्लूड करना है, ठीक है. जब तुम ये सारी चीजें इंक्लूड कर लोगे तब तुम्हारा एक पर्टिकुलर चैप्टर का शॉर्ट नोट कंप्लीट होगा. एंड ऑल्सो मेक श्योर तुमने उस पर्टिकुलर चैप्टर के इनफ क्वेश्चन कर लिए हैं कि यू आर एबल टू जज कि कौन सी चीज से क्वेश्चन आता है और कौन सी चीज से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है. क्योंकि अगर तुम ये जज नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से क्वेश्चन आता है कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यू विल एंड अप
कॉपिंग योर मेन नोट्स एज योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अगर तुमने उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं करे हैं, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करे, या फिर तुमने मिनिमम 200-300 क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो प्लीज डोंट मेक दीज शॉर्ट नोट्स. दीज शॉर्ट नोट्स आर टू बी मेड व्हेन यू हैव डन इनफ क्वेश्चंस टू जज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम ये जज नहीं कर पाओगे तो तुम यू विल एंड अप कॉपिंग ऑल ऑफ योर नोट्स एज योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट इट वेरी स्मॉल ओनली फॉर यू टू बी एबल टू रीड इट, ठीक है. यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग इन इट एंड नॉट ओनली द पॉइंट्स दैट यू फॉरगेट मोस्टली. एंड इफ यू वांट कि तुम बस वो छोटे छोटे फैक्ट्स होते जो तुम बस भूल जाते हो, उसे बस तुम्हें वो याद रहे हमेशा, देन यू कैन वॉच माई दिस वीडियो. आई हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई कि पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा एक शीट के एक साइड में कंपाइल हो जाए, ठीक है. अगर बड़ा चैप्टर है तो तुम बैक साइड भी यूज कर सकते हो, बट इफ यू राइट इट वेरी टाइनी कि बस तुम उसे रीड कर पा रहे हो, तो इट इज पॉसिबल कि वो तुम्हारा एक साइड में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है. वरना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना अपने पेज को, ठीक है. मेक श्योर एक चैप्टर एक शीट से ज्यादा ना ले. बैक एंड फ्रंट दोनों साइड तुम लिख सकते हो, बट एक शीट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए तुम्हारा शॉर्ट नोट. सो यू कैन डू दिस फॉर योर फिजिक्स एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. इट विल बी ऑफ इमेंस हेल्प, ठीक है. For biology, as I told in the earlier video, also you have to annotate your NCERT and how to annotate and what all points that you have to write in the white spaces. I've completely explained in this video. I also explained in my previous video also. थोड़ा सा brief में कर देती हूँ. जितने भी तुम्हारे extra points तुम्हें लगे, कोई भी explanation, कोई भी tough questions, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो एग्जामिनर तुम्हें घुमा सकता है, ठीक है, उन सारी चीजों को you have to write it down in the white space that is given in the NCERT book. You can also add some pages, but कंपाइल कर लो सारी चीजें सिर्फ एनसीईआरटी में, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लास्ट 1 month एज वेल एज इन द लास्ट 1 week. क्योंकि तुम अगर सारी चीजें रिवाइज करके जा पाओगे तो तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है. फॉर ऑर्गेनिक एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू, आइदर योर एनसीईआरटी और योर नोट्स, ठीक है. कहीं एक जगह पर पूरा कंपाइल करके रखो मत. यू कैन ऑल्सो मेक शॉर्ट नोट्स फॉर सम ऑफ द चैप्टर्स, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी ऑर्डर्स जो होते हैं, वो सारे का तुम एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है. उन चैप्टर्स के तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि जो ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में जो नेम्ड रिएक्शन वाला पार्ट है, उन सारे चैप्टर्स के तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. और बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उनको तुम अपने मेन नोट से पढ़ सकते हो. और पर मेक श्योर कि तुम अपनी सारी चीजें कहीं एक जगह पे कंपाइल कर दो. एंड यू हैव टू बिगिन ऑल दिस फ्रॉम द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. क्योंकि यार अगर तुम ये बाद के लिए छोड़ दोगे ना, तो बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें कि तुम ये सारी चीजें अच्छे से कर पाओ, ठीक है. और अगर तुम खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो, खुद से सारा काम कंपाइल करते हो ना, तो you remember more, you retain longer. So this was my way to make short notes. And if you're a serious NEET aspirant and want one-on-one personal guidance from me, then I've started my mentorship program. Help serious NEET students with the revision schedules based on their strengths and their weaknesses. I personally connect with you, giving you all the hacks and tricks and all the strategies for effective revision to build discipline, to build consistency. And you also get an accountability partner, that is me myself. So if you're a serious NEET aspirant and want me to personally guide you, then you can message me directly on my WhatsApp number. The further details for the mentorship are given in the pinned comment and also in the description box. Do message me. And if you found this video useful, do not forget to hit that subscribe button, because it makes up for all the effort that I put into making such videos. Like the video and comment down whether you have started making your short notes or not. Okay, we'll meet you in the next video. Okay, bye.